let's get started. Yeah, I was not there last 2 days, and I think Swati has given you all the details required, Yeah. and things have been done. Maybe the service memo part I may have to revise sometime a little bit because the financial accounting is linked with it. Yes. So there was one mail sent to you by Swati. You must have read it. That Yeah. what all the things have been discussed and what all things are pending. So Yeah, roughly, I Mitesh. made for you to understand the overall work, and it looks to be quite approachable to me now. Means quite doable to me now. Let's see how Right. it goes because even I'm thinking, right? Yes. So today I would like to first explain you the functionality of PPC, a very important part. Okay. Actually, PPC is handled solely by Swati madam in this company. Okay. But I told her that I will first explain him the functionality and then we'll go to the screen details. Okay. So if you are ready to listen, I'll start my description about PPC. Yes. Yeah, PPC's full form is Production Planning and Control. Okay. It is there in all the manufacturing units. Like you estimate what you want to produce, and then for whatever material you are going to run short, that is the report the PPC program gives. Okay. Now, say for example, if first of all, every file has a particular name. So to get that file name, what we do is the PPC starting date and the end date. Say for example, PPC starting date is 28th of July and end date is say 31st of August. So I'll put 280726 and 31st August 2026. So that will be the name of the file itself, that PPC file. Okay. That's a small thing which I'll show you on the screen. What PPC does is, what we do is we take out, we tell the program that we want to check the sales orders keyed in last from so and so date to so and so date. मतलब पीपीसी क्या करता है शांतनु कि मुझे जो मेरा ऑर्डर्स का फ्लो है यानी जो ऑर्डर्स का ट्रेंड है, नॉट द फ्लो, द ट्रेंड, Yes. वो हम निकालते हैं. अगर मैंने कहा कि 1 जुलाई से 26 जुलाई तक के एसओ को कंसिडर करिए, हाँ. तो इट आस्क्स द टाइप ऑफ एसओ. Right. Because there are different types of SOs, like we have end user SO, dealer SO, government SO, etc. So Okay. we have to tick those types of SOs, which SOs have to be considered for PPC. taking out the sales trend. Right. So normally government order का SO हम लेते ही नहीं क्योंकि government order will never be repeated in the same fashion. Right. So we take the commercial SO, like we take the dealer SO and the end user SO. Okay. And then we give from date to date. Right. Which SOs to be considered, from which date to which date. Okay. And then the third input we give is which department's stock to be considered. Okay. And the fourth input we give is the number of machines we got to make. Right. That is all. The inputs are only this much. Okay. So what does the PPC program do? कि वो क्या करता है कि सपोज मैंने 1 तारीख से 30 तारीख तक के एसओ कंसिडर करो पिछले महीने के, अगर ऐसा बोला है, Right. और उसको बोला है कि डीलर एसओ और ब्रांच के एसओ, एंड यूजर एसओ कंसिडर करना है आपने. Right. So what it does is it takes out all the combinations and quantity. Like say for example, combination A 50 पीस बिके उस पीरियड में, कॉम्बिनेशन B 100 पीस का एसओ आया हुआ है, कॉम्बिनेशन C 200 पीस का एसओ आया हुआ है. वैसे वो दोनों टाइप के एसओ के निकालेगा, डीलर्स के भी और एंड यूजर के भी. Okay. और उनको क्लब कर लेगा. जहाँ जहाँ कॉम्बिनेशन दोनों तरफ है, उसको मान लो डीलर्स में ए टाइप का कॉम्बिनेशन 50 है और एंड यूजर में ए टाइप का कॉम्बिनेशन 5 है, तो दोनों मिला के ये निकाल लेगा कि उस पीरियड में 55 कॉम्बिनेशन ऑफ ए टाइप का ऑर्डर आया था. करेक्ट? Okay. इज दैट क्लियर? Yes. हाँ. तो जितने टाइप के एसओ को मैं टिक करूंगा, उतने सभी टाइप के एसओ में वो कॉम्बिनेशंस देखेगा, कौन कौन से कॉम्बिनेशंस और क्या क्या क्वांटिटी के ऑर्डर्स डले हैं उस पीरियड में, और उनको वो क्लब कर, जो कॉम्बिनेशन तीनों तरफ होंगे, चारों तरफ होंगे, तो वो कॉम्बिनेशन की टोटल लगा लेगा कि इस पीरियड में ए टाइप के इतने कॉम्बिनेशन की ऑर्डर थी, बी टाइप के इतने कॉम्बिनेशन की थी, सी टाइप के इतने कॉम्बिनेशन की थी. ऑलराइट? Okay.
और उनकी टोटल लेगा से फॉर एग्जांपल नाउ आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल, ए टाइप के 50, बी टाइप के 100 और सी टाइप के 200. Right. दिस कम्स टू 350. Okay. नाउ इट विल टेक द परसेंटेज. A टाइप के 50 by 350 percentage comes to about 14.28%. Okay. समझ रहे हैं आप शांतनु? हाँ हाँ. And 100 divided by 350% is comes to 28.57%. Okay. And 200 divided by 350 percentage comes to 57.14%. और इस सबका टोटल नीचे आ जाएगा 100%. Okay. ठीक है. तो सबसे पहले पीपीसी ये निकाल लेता है कि कौन से कॉम्बिनेशन कितने परसेंट की ऑर्डर हमें पिछले उस पीरियड में आई थी जो हमने पीरियड सिलेक्ट किया है. ओके. और वो एक स्क्रीन दिखाता है या समझ लो वो एक जो भी है वो दिखाता है अपने को कि इतना इतना हुआ था. ठीक है. राइट. नाउ द नेक्स्ट इनपुट आई एम गिविंग यू इज व्हिच डिपार्टमेंट्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल वर्किंग ऑन पीपीसी. ओके. सो अभी कैसा है कि हेड ऑफिस में जब भी सॉरी फैक्ट्री में जब भी मैं एमआईडीसी फैक्ट्री का मैं पीपीसी रन कर रहा हूँ तो एमआईडीसी फैक्ट्री के सभी डिपार्टमेंट वो दिखाएगा. तो उसको ये टिक करेंगे. फॉर एग्जांपल नॉन कंफर्मेटिव डिपार्टमेंट में जहाँ फॉल्टी मटेरियल पड़ा है उसको टिक नहीं करेंगे. So whatever departments they अच्छा why this department's name has been given is to consider the stock of this department. Say for example मेरे को 100 मशीनें बनानी है तो मेरे को जो जो स्टॉक शॉर्ट पड़ने वाला है, कम गिरने वाला है, उसी का वो रिपोर्ट देने वाला है. दैट इज ऑल इज द पीपीसी. राइट. तो ये स्टॉक मेरे को कौन कौन से डिपार्टमेंट में का कंसिडर करना है, इसके लिए मुझे डिपार्टमेंट्स को टिक करनी है. ओके. ठीक है. जो डिपार्टमेंट का स्टॉक मुझे नहीं कंसिडर करना है पीपीसी रन करते टाइम उसको मैं टिक नहीं करूंगा. ओके. तो मान लीजिए मेरे पास में कुल मिला के 65 डिपार्टमेंट्स है एमआईडीसी फैक्ट्री में. उसमें से मैंने लगभग 45 डिपार्टमेंट्स को टिक कर दिया. ओके. So the first input was from which date to which date I am going to consider the SO and what type of SO. Then next my input is which departments I am going to consider in the factory. This is the third input I am giving you. नाही नंबर ऑफ मशीन तर देत होते ना. नाही म्हणजे आपले कुठल्या कुठल्या टाईपच्या एसओ तो झाला. फ्रॉम टू डेट एसओ 2 झालं. तर ट्रेंड तो काढेलच ना. थर्ड वन इज द व्हाट यू से which departments I need to consider, and the fourth one is the number of machines. So say if I tell him that I got to manufacture 10,000 machines, that is my last input. Right. So what does the program do is कि 10,000 मशीन बनाने हैं तो ये 10,000 मशीन मेरे को यही परसेंट में लगना है. ए कॉम्बिनेशन 14.28% लगेगा, बी कॉम्बिनेशन 28.57% लगेगा और सी कॉम्बिनेशन 57.14% ऑफ 10,000 निकालेगा वो. राइट. ओके. बिकॉज लॉजिकली दैट इज व्हाट इज द सेल ट्रेंड, मार्केट ट्रेंड. और मुझे 10,000 मशीन बनाने तो इतने मशीन बनाने पड़ेंगे. राइट. ठीक है. ओके. अभी इसमें ऐसा है कि मेरे पास में फिनिश प्रोडक्ट गोडाउन भी है. हाँ. तो उसको भी मैंने टिक किया हुआ है. हाँ. तो उसको अगर मैंने टिक किया है तो उसके अंदर काफी मशीन्स मेरे पास में स्टॉक में पड़े रहते हैं जो इन कॉम्बिनेशंस को मैच होंगे. राइट. ठीक है ना. तो ये कॉम्बिनेशन में जितने भी मशीन होंगे उतने वो ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएंगे. ओके. और फिर वापिस से मैं कॉम्बिनेशन मतलब ये 10,000 जो है 10,000 इज द फिगर विच आई वांट टू मेक. वो कम ज्यादा मतलब एक हाथ 2 पीस ठीक है, लेकिन मेरे पास में मान लो 6,000 मशीन मैचिंग में है ये 10,000 में से, ये कॉम्बिनेशन ये रेशियो वाइज. बट फिर भी मुझे 10,000 बनाने हैं. गॉट इट. यस. यस. तो इसके लिए फिर मुझे क्या करना पड़ेगा कि 10,000 जो मुझे बनाने हैं इसकी जगह मैं 15,000 बनाने का अपने आप वो करेगा. और फिर 15,000 के हिसाब से परसेंटेज से कौन कौन से कॉम्बिनेशन कितने चाहिए वो निकालेगा, माइनस बीएसआर का स्टॉक करेगा. तो उसको पता चलेगा कि नहीं यार 15,000 में नहीं हो रहा है तो 18,000 करेगा. और अगर कम लग रहा है तो वो कम करेगा. ऐसा सक्सेसफुल अप्रोक्सीमेशन मेथड में जाके अल्टीमेटली वो 10,000 मशीन मैन्युफैक्चरिंग में लाएगा. या तो उसका मेरे पास में दूसरा फॉर्मूला है जिसमें एक ही अल्ट्रेशन में जवाब आ जाता है. ओके. दैट फॉर्मूला आई विल गिव यू. ओके.
So you're not using that inside the PPC model right now? No, in the PPC model right now, we are using a successive approximation method. How it works, I can tell you. I want to manufacture 10,000 machines. और मेरे फिनिश गोडाउन के अंदर 4,000 मशीन्स ऑलरेडी है जो इस कॉम्बिनेशंस को मैच हो रहे हैं. Right. मतलब कैसा होगा, आई टेल यू. 10,000 मशीन बनाने हैं तो पहले वाले 1,428 बनाने होंगे, दूसरे वाले 2,857 बनाने होंगे और तीसरे वाले 5,714 बनाने होंगे. Right. जिसमें पहले वाला कॉम्बिनेशन मेरे पास में 2,000 पड़ा है. तो 1,428 ही मैं पकड़ूंगा. 2,000 एक्स्ट्रा से उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है. ठीक है. तो और बाकी मान लो नहीं है तो मैं क्या करूंगा कि 10,000 में 1,428 ऑलरेडी है. इसके लिए मैं 10,000 में 1,428 ऐड करूंगा और नेक्स्ट मैं रन करूंगा 11,428. वो प्रोग्राम अपने आप करता है. Okay. और वो हिसाब से वो बढ़ाते जाएगा. करीबन चौथे पांचवें अल्ट्रेशन में या 10वें अल्ट्रेशन में उसको मिल जाता है कि उसको 10,000 मशीन बनाने हैं. मीन्स 10,000 मशीन बना रहे हैं. उसके बाद में मान लो उसका आता है 16,000 मशीन पे बैठ गया. ठीक है. तो 16,000 मशीन का ये अगर आप परसेंटेज निकालेंगे ए बी सी का तो जितनी मशीनें होंगी वो स्टॉक मिला के बराबर बैठने वाली है. Okay. ठीक है ना. ये जो यहाँ का मसला है ये मैं आपको मैथमेटिकली प्रूव करके और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा. Okay. थोड़ा आगे बढ़ जाता हूँ. Yes. अब ये होता है कि मान लीजिए आपको 10,000 मशीन बनाने हैं. कौन कौन से कॉम्बिनेशन बनाने हैं डिफाइन हो गया. पहले ट्रेंड आ गया. ट्रेंड के बाद में मैंने नंबर ऑफ मशीन दिए थे, मुझे इतने बनाने हैं. तो आपको 10,000 मशीन अल्टीमेटली कौन से बनाने ये आ जाएंगे. भले आप पीपीसी 16,000 तक लेके गए हो इंटरनली, लेकिन 6,000 मशीन मेरे पास स्टॉक में. आखिरी में तो मुझे 10,000 ही बनाने हैं. और वो 10,000 बनाने के बाद और मेरे पास जो रेडी स्टॉक है उसको क्लब करने के बाद ये जो सेल ट्रेंड का मुझे परसेंटेज मिला है उसी परसेंट में मेरे मशीन रेडी रहने वाले अलग अलग कॉम्बिनेशन के. करेक्ट. Yes. I think I'm making it absolutely clear. Yes. My only doubt is, see, you considered stock which was there in the warehouse already. Like, I mean, your PPC subtracted the existing stock, right? But that existing stock might be made on order, na? So, I mean, it might so happen that it is there, but it is still not dispatched. So, if you just calculate that, and if you reduce your PPC, yeah. No. PPC has got nothing to do with all these possibilities. Okay? PPC में मैंने लिखा है मुझे 10,000 मशीन बनाने हैं. The fourth input would have given I want to make 10,000 machines considering the sale trend of last 1 month. तो लास्ट 1 मंथ में जो भी सेल हुआ है उसका वो परसेंटेज निकाल लेगा. 10,000 मशीन बनाने, सेम परसेंटेज इट विल अप्लाई ऑन द वेरियस कॉम्बिनेशन 10,000 बनाने के लिए. उसपे मेरे पास जितना माल ऑलरेडी रेडी है तो 10,000 को वो बढ़ाएगा और मेरा एग्जिस्टिंग स्टॉक वो हिसाब से एडजस्ट होता है. मतलब वो कैलकुलेशन में चलेगा. आखिरी में मुझे 10,000 मशीन ही बनाने आने हैं और वो बना देने के बाद प्लस माय एग्जिस्टिंग स्टॉक उसको अगर मैं मिक्स करता हूँ, बराबर है, तो मेरे जो कॉम्बिनेशंस होंगे वो ये सेल ट्रेंड के हिसाब से ही आने वाले परसेंटेज. Okay. और पेंडिंग डिस्पैच इज अ डिफरेंट फंडा ऑल टुगेदर. जो हमारी बिलिंग हो जाती है लेकिन मान लिया हमारे पास पेंडिंग ऑर्डर जो पड़े हुए हैं वो भी इसको हम इस पे पीपीसी में कंसिडर नहीं करते हैं. मतलब कि अगर हमारे पास कुछ माल पड़ा हुआ है जो पेंडिंग ऑर्डर्स के अगेंस्ट है, जो आपका कहना है, that we don't want to consider in this PPC at all, that possibility. No, but then how would you exclude that? ऐसा होता है कि हमारे पास जो पेंडिंग एसओ जो पड़े हुए हैं, बराबर है, उतना अगर माल अगर हमारे पास में है तो उतना और हाथ से ऐड कर लेंगे पीपीसी में. मतलब अभी ये पीपीसी एक बार थोड़ा आप समझ लो, आगे जाके आपको इन सवालों का जवाब मिल जाएगा. हम देखिए डेली एक पीपीसी रन करता है जिसमें जितने भी पेंडिंग एसओ हमारे पास पड़े हुए अलग अलग टाइप के वो अपने आप कर लेता है. खाली एक प्रोग्राम है जिसमें हम बोलते हैं कि रन द पीपीसी अगेंस्ट पेंडिंग सेल्स ऑर्डर्स. Okay. तो पेंडिंग सेल्स ऑर्डर्स के अंदर हमें कौन सा मटेरियल शॉर्ट पड़ने वाला है वो डेली हमारा एक ऑफिसर रन करता ही है. एंड दैट रॉ मटेरियल हैज टू बी प्रोक्योर्ड ऑन द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी. ठीक है ना. तो हमारे पास कभी भी पेंडिंग ऑर्डर्स बहुत बड़ा लॉट रहता ही नहीं है. और अगर कोई गवर्नमेंट का बड़ा ऑर्डर है तो
हम उतना अभी ये पीपीसी में जैसा आपने सेल ट्रेंड निकाला बाय कंसीडरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड सेल्स ऑर्डर, उसके अंदर हम हाथ से कुछ मॉडल्स ऐड कर सकते हैं। मॉडल्स बोलो, स्पेयर बोलो, असेंबली बोलो, एनीथिंग वी वांट। अभी जैसा आपने सेल ट्रेंड निकाला पिछले 1 महीने का, जिसमें ए आ गया 50% और जो भी आ गया परसेंटेज में, टोटल इतने मशीन आए, ठीक है, उसमें फिर मैं हाथ से और ऐड कर सकता हूँ। मुझे अगर कोई और मॉडल्स बनाने हैं, कोई और असेंबली एडिशनल टू सेल ट्रेंड एनालिसिस बना के रखने हैं, दैट आई विल ऐड बाय हैंड, एंड देन आई विल गो टू द नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स आई वांट टू सिलेक्ट, एंड देन और आई विल गिव द क्वांटिटी ऑफ द नंबर ऑफ मशीन्स, एंड देन इट विल रन. So that manual adjustment I can do while running the PPC or while finding out the sale trend analysis. Right. Okay. Okay. अभी क्या होता है कि when I talk about now the main program starts running, कि उसे पता है कि XYZ combination इतना बनाना है, ABC combination इतना बनाना है, combination, you know, model plus accessory is the combination I'm talking about. Yes, yes, I remember. Yeah, you know that, right? Correct. तो वो क्या करता है कि पहले कॉम्बिनेशन को मॉडल और एक्सेसरीज में ब्रेक कर लेता है, जितना भी बनाना है उसको टोटली। तो देयर कुड बी सम एक्सेसरीज रेडी इन द फैक्ट्री इन सम ऑफ द डिपार्टमेंट्स, तो उतना बनाने को वो माइनस कर लेता है। कुछ मॉडल्स कहीं पे रेडी पड़े होंगे, तो वो पहले कॉम्बिनेशन अगर रेडी है बीएसआर में, मतलब फिनिश प्रोडक्ट गोडाउन में, तो उतने सीधे माइनस कर देता है। नहीं, पर वही मेरा क्वेश्चन था कि वो रेडी होंगे तो वो हो सकता है ना किसी और के ऑर्डर पे बने हुए होंगे, तो आप उधर से इसको, आप तो ये दिस इज जस्ट अ प्रेडिक्शन। ऑर्डर से नहीं, अगर किसी ऑर्डर हमारे पास में पेंडिंग है जो हमने बिलिंग नहीं किया है, हाँ, तो उतना हम पीपीसी में हाथ से ऐड कर लेंगे। ओके, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। ओके, ठीक है ना। और नॉर्मली हमारे यहाँ पर कोई भी ऑर्डर पेंडिंग नहीं रहता है। अच्छा, ओके, आप ही ने एक रिपोर्ट बना के दिया है, ओके, राइट, ठीक है ना। तो वो अगर कोई पेंडिंग ऑर्डर है भी, तो वो हम पीपीसी में हाथ से ऐड करने का हमारे पास में प्रोविजन है। ओके। तो एक सेकंड होल्ड करना प्लीज। हाँ, हाँ, Yeah. Yeah. So it sees whatever are the ready combinations available in the given departments, उतने वो माइनस कर देता है। फिर वो कॉम्बिनेशन को मॉडल और एक्सेसरी में ब्रेक करता है। Right. फिर वो देखता है कि कितने एक्सेसरीज या ओनली द मॉडल्स आर रेडी, उतने वो माइनस कर देता है। हाँ, उसके बाद में वो हर एक आइटम के बीओएम में जाता है हाँ, और उसको फर्स्ट लेवल पे ब्रेक करता है। बीओएम फर्स्ट लेवल मतलब उसमें कुछ असेंबलीज होंगे और कुछ रॉ मटेरियल होगा, ठीक है। राइट, तो सारे जितने भी उसको मशीन्स बनाने हैं अलग अलग, उनके फर्स्ट लेवल पे पहले वो ब्रेक करता है, और उसमें जितने भी असेंबलीज आ रही है सब टोटल मिला के 5,000 50,000 जो भी आ रही होगी अलग अलग असेंबलीज, वो हमारे पास में कितनी कितनी रेडी है अलग अलग डिपार्टमेंट में, वो चेक करके वो माइनस कर देता है। ओके, ठीक है, ऐसा करके इट कीप्स ऑन गेटिंग डाउन टिल द कंपोनेंट लेवल। राइट, रॉ मटेरियल आइटम, और फिर उसको कंपोनेंट भी क्या शॉर्ट में वो मालूम पड़ जाता है। शॉर्ट मतलब मान लीजिए कि उसको अलग अलग इतने असेंबली बनाने आ रही है, ठीक है, इतने असेंबलीज बनानी है, तो असेंबलीज बनानी है, तो असेंबलीज को कंपोनेंट लेवल पे ब्रेक कर लेता है। और देयर आर सम कंपोनेंट्स व्हिच आर डायरेक्टली पुट अप ऑन द बीएम ऑफ द मॉडल और समथिंग, तो वो भी कंपोनेंट्स वहीं से मिल जाते हैं उसको। तो वो करके वो टोटल उसको कितने कंपोनेंट लेवल पे माल शॉर्ट गिरेगा वो निकालता है बीएम्स को रिवर्स डायरेक्शन में ब्रेक करते करते, और उतने कंपोनेंट आपको मंगाने पड़ेंगे, इसका रिपोर्ट देता है। ओके, ठीक है। और जितनी उसको अलग अलग असेंबलीज बनानी पड़ेगी उसका भी वो अलग से रिपोर्ट देता है कि आपको इतने कंपोनेंट शॉर्ट गिरने वाले हैं, इतने असेंबलीज मैन्युफैक्चर करना है। तो वो हिसाब से फिर हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का अगले महीने का शेड्यूल लग जाता है। जो हमारे पास में 11 अलग अलग असेंबलिंग डिपार्टमेंट्स है, उनको पता है उनको क्या क्या बनाना है, ठीक है ना। और परचेज डिपार्टमेंट वाले रॉ मटेरियल को ऑर्डर दे देते हैं उसी रिपोर्ट के ऊपर से। और जो फिनिश प्रोडक्ट है उनको भी हम शेड्यूल देते हैं कि क्योंकि फिनिश प्रोडक्ट क्या बनाने है पीपीसी से आ ही गया है, बराबर है। तो वो हिसाब से हमारे सारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, परचेज डिपार्टमेंट, सबको उनका शेड्यूल एक पीपीसी रिपोर्ट आ जाने से लग जाता है। ओके,
It's a very important functionality. The whole company is planning and working runs on it. This is, I'm just giving you a overall picture and the utility of this program. Okay, fine. बहुत Yes. मैंने बताया, but in details I can of course explain you as you get into it. So what I understand is the PPC is basically predicting कि in the coming month what is the number of orders that are going to come. So you are going to Correct. be prepared for those orders well in advance. Like I mean, it's not Correct. like you will create those machines on order. It would be ready with you based on the historical trend, and apart from that, any government order or a big custom order which comes in, so that would be on demand. Like I mean, that would manufacturing would be on demand, but mostly all of this dealer and direct consumer business is mostly based on prediction, so that your turnaround time is least. Like whenever the order comes in, you already have those machines in stock. Shantanu, you understood this up to 100.01%. All right. Perfectly, you understood the whole functionality, why we want this PPC. And here we are not asking the computer कि अगले महीने में कितने मशीन बिकेंगे, कौन, वो नहीं. That only we are giving one input, number of machines. वो हमारा सब बाकी मैनुअल कैलकुलेशन है, हमें पता है, और वो हिसाब से हम देते हैं. हम सिर्फ 4 इनपुट देने वाले हैं. कौन से टाइप के ऑर्डर्स, कौन से पीरियड के ऑर्डर्स, कौन से डिपार्टमेंट हम कंसीडर करने वाले हैं, और कितने नंबर ऑफ मशीन्स हमें बनाने हैं. That's it. Okay, so question is how many machines? This question you answer internally outside the scope of this software. So based on what would you I mean, why is that calculation not part of the BPC? See, actually for that our business is actually seasonal. August to December, it's a peak period. So what actually we have planning, we have the sales of last years. So based on that we have the record कि हमने कौन से महीने में कितने मशीन बेचे थे. Right. Okay. तो हमें पता है कि हम 4 महीने का अभी प्लानिंग करना चाह रहे हैं या 5 महीने का, और हमारा कितना ग्रोथ दिख रहा है, 5% या 10%. तो वो ऐड करके वो जो फिगर है वो मैन्युअली निकाल लेते हैं. उसको हमें कुछ भी टाइम नहीं लगता है, वो हमारा प्रैक्टिस है. Right. Okay. वो अगर हमने फिर से इसको दिया, क्या कहते हैं, ERP को, तो प्रोबेबली इट मे बिकम लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि उसमें थोड़े बहुत ऐसे भी फैक्टर्स कंसीडर करने पड़ते हैं जो प्रोग्राम में नहीं आ सकते हैं. Okay. वो फिगर हम देते हैं. दैट इज आउट ऑफ द स्कोप ऑफ द प्रोग्राम सॉफ्टवेयर For now. ओके. सो ओनली सेल ट्रेंड वो देखता है लास्ट पीरियड का, वो हिसाब से उसका परसेंट निकालता है, और जितने मशीन हमें बनाने हैं उसको वो परसेंट अप्लाई करके उतने कॉम्बिनेशंस की क्वांटिटी निकाल लेता है. जितने हमारे पास रेडी पड़े हुए वो कॉम्बिनेशन, उतना वो पीपीसी का फिगर बढ़ा के लाता है. वो मैं बता दूंगा आपको कैसे होता है एग्जैक्टली. Right. Okay. और फिर बाद में कॉम्बिनेशन कितने रेडी है वो माइनस करेगा. फिर एक्सेसरीज पे आएगा. एक्सेसरीज और मॉडल्स को ब्रेक करके वन लेवल कॉम्बिनेशन को ब्रेक करोगे आप, तो आपको मॉडल और एक्सेसरीज मिलेंगे. फिर मॉडल को एक लेवल ब्रेक करेगा, एक्सेसरीज को भी एक लेवल ब्रेक करेगा. जितने भी असेंबलीज है, वो असेंबलीज कितनी बनानी है वो लेके आएगा. यानी जितनी असेंबलीज होगी ऑलरेडी वो पहले माइनस कर लेगा. फिर जितनी असेंबलीज बनानी आएगी, फिर असेंबली को और नीचे ब्रेक करेगा. हो सकता है असेंबली कुड बी ऑफ मेनी डिफरेंट असेंबलीज से आया होगा. वन लेवल नीचे जाके उसके कितने असेंबली रेडी वो देखेगा. लॉजिकली इफ यू अंडरस्टैंड, then you can think of program. Correct? Right. Yes. That is how ultimately it goes up to the component level. And it also says कि उसको कितने असेंबली बनानी पड़ने वाली, कौन सी. तो हमारे जब असेंबली डिफाइन होती है तभी हम उसको डिपार्टमेंट का नाम लगा देते हैं कि असेंबली कौन से डिपार्टमेंट में बनने वाली है. तो ये पीपीसी रन करने के बाद में कौन से असेंबली कितनी बनने वाली है ये भी आ जाता है. तो वो डिपार्टमेंट का नाम भी लग के आ जाता है. राइट. तो वो डिपार्टमेंट का प्रोडक्शन शेड्यूल भी मिल जाता है. भाई हमारा एसएमटी डिपार्टमेंट है, उसने फलानी पीसीबी 10,000 पीसीबी बनानी है महीने भर में. सो बेस्ड ऑन दैट हम हमारा मैन पावर प्लानिंग भी कर लेते हैं कि इस डिपार्टमेंट में 12 लोग लगेंगे, इस डिपार्टमेंट में 4 लोग लगेंगे. और वो सब देखे हम वो हिसाब से पीपीसी के हिसाब से काम निकाल लेते हैं. बिल्कुल. Right. तो दैट इज हाउ इट गोज. Okay. सो इफ यू अंडरस्टैंड दिस पीपीसी जो हमने बनाया है ना, टोटल ऑटोमेशन नहीं किया, लेकिन हमारे पर्पस के लिए परफेक्टली सूटेड है, और इसके ऊपर पूरा काम दाम सब बराबर चलता है.
Right. Okay. तो ये इसका बेसिक फंडा है, अगर आप समझ गए होंगे तो. Yes, yes, I understand कि this is the most crucial thing कि आप क्या कर रहे हैं इसमें, और आपने पूरा मतलब वो ABC करके ये भी निकाल लिया कि how many different models of what products you would need, and and then you're breaking them down level by level. So, Correct. and that's how you get the details there. So I guess that's okay, that's understandable. Perfect. So, and mathematically or logically, if you understand that writing a program for it is easy, Yeah. maybe if there is some glitch or some kind of a bugs, we can sort out. Ultimately, the result should match. Yes. एक बार उतना shortages correctly आ गया, तो बस that is all is the PPC. So we have all the schedules drawn with this PPC program run कि कौन से डिपार्टमेंट में हमें क्या बनाना है, कितना क्वांटिटी बनाना है, रॉ मटेरियल कौन सा शॉर्ट पड़ने वाला है, किसको ऑर्डर देना है, वो सब हमको मिल जाता है. So this PPC module was there in your Fox Pro version also? Yeah. Okay. See, the PPC के बिना ये फैक्ट्री चल ही नहीं सकता है. और वो भी एक्चुअली फॉक्स प्रो में जब मैंने बनाया था ERP, वो टाइम में मेरा ही कंसेप्ट था कि ऐसा होना चाहिए प्रेडिक्शन. तो वो हिसाब से वो फॉक्स प्रो वाले बंदे ने पहले बनाया था, और बाद में फिर इसके अंदर आलोक मामा ने बनाया पूरा. राइट. ओके. राइट. ठीक है. तो कैलकुलेशन बहुत आसान है, इसका खाली कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है. हाँ. ओके. ठीक है ना. तो अभी मैं आपको कुछ ERP के स्क्रीन्स बताना चाहूंगा, सॉरी PPC के स्क्रीन बताना चाहूंगा. Sure. Okay, let's go for it. So I am keying in into this PPC. मला नवीन PPC लावायचा आहे. So I am selecting this PPC icon here. Yeah. See now there, if you see in the grid, there are so many PPCs already. You can see here. There are many of them. Yeah. Which are already executed. So now I go on this plus sign, generate new PPC. And here I have to give from to date. Say for example, if I say this PPC I want to run from 01/08/2026 to 31st December 2000. This I am giving a 1st August to 31st December 2026. Why I am giving this? That is nothing to do with software program. Okay. Okay, let that be with me only. But then when the PPC will run, it will get the number as 01/08/2026 31/12/2026. वो PPC का फाइल को वो नाम मिल जाएगा, बस इतना ही है. Okay. देखो जैसा ये नीचे आ गया PPC नेम 01/08/26-31/12/26. ये जो ऊपर मैंने डेट डाली वो PPC का वो फाइल का नेम आ गया यहाँ पर. ओके. अभी यहाँ पर मैं बोलूंगा नंबर ऑफ मशीन्स टू मेक. से आई मे पुट 10,000 फॉर एग्जांपल हियर. ओके. एंड देन हियर इफ यू सी दिस ticks, so whatever ticks have been made last time while running PPC, that it remembers, and next time it shows the same tick unless I change. Are you there? Yes, here. Yeah, so all these departments are there. Even there are different manufacturing units, even branch offices. जहाँ पर branch offices पे मैं बोल रहा हूँ कि वो material handle करता है. See, in branch office also there are departments, correct? Yes. Yeah, so जिधर हम लोग फिनिश प्रोडक्ट रख रहे हैं ब्रांच ऑफिस में, वो डिपार्टमेंट यहाँ पे आ जाता है. तो अभी PPC रन करते टाइम, लास्ट टाइम जब स्वाति मैडम ने PPC रन किया होगा, वो टाइम जो भी डिपार्टमेंट को इन्होंने टिक किया है, अभी मैं PPC नया रन कर रहा हूँ तो दो टिक्स विल रिटेन. मतलब मुझे फिर से डिपार्टमेंट वाइज ढूंढते नहीं बैठना है. ओके. नाउ हियर द सिलेक्ट एसओ टाइप. एसओ में मैं डीलर एसओ सिलेक्ट किया, इसको टिक किया पहला वाला. दूसरा मैंने सिलेक्ट किया एंड यूजर एसओ. ओके.
सो मैंने देखिए मैंने इनपुट क्या क्या दे दिया कि ये डेट से ये डेट तक का पीपीसी का नाम है और ये आ गया सेल्स एसओ डेट रेंज। यहाँ पे दिख रहा है मेरा कर्सर? यस, यहाँ पे मैंने डाल दिया 01/07/2026 to 27/07/2026। मतलब आप एसओ ये पीरियड के अंदर की कंसिडर करो सेल ट्रेंड निकालने के लिए, और आपने खाली डीलर एसओ और एंड यूजर एसओ ही कंसिडर करनी है। और आपको ये बीएसआर जेट इसे हमने नया क्रिएट किया था, इसके लिए वो स्वाति मैडम ने बोला यहाँ भी टिक कर दो, ठीक है ना। और यहाँ पर ये जो है ये टिक ऑलरेडी लास्ट टाइम की लगी हुई यहाँ पर आ गई, और मैंने सिलेक्ट एसओ डेट रेंज दे दी कि इस पीरियड का आप देखो, ये 2 टाइप के एसओ देखो, मुझे 10,000 मशीन बनाने हैं और ये पीपीसी का नाम ये होगा, मतलब ये डेट डाल दी मैंने, दैट्स ऑल। अच्छा, जितने मैंने आपको इनपुट अभी एक्सप्लेन किए थे उतने इनपुट मैं यहाँ दे रहा हूँ, बराबर है? ऑल क्लियर? या क्लियर। Now what do I do, madam? So one question is, Yeah. see, you're selecting all of these departments and these business locations, right? So all of this you are selecting by hand, and always these selections are going to be same, or do they change between various PPC plannings? There could be some issues sometime, because see this our requirement could be complex sometime when we put the PPC. Okay. कि हमको समझ लो ब्रांच का फिनिश प्रोडक्ट का स्टॉक नहीं कंसिडर करना है, या हमको हमारे जो फिनिश प्रोडक्ट के वेयर हाउसेस है विद इन द फैक्ट्री उसका भी स्टॉक नहीं पकड़ना है। फॉर एग्जांपल मुझे ऐसा कुछ ऑर्डर मिला है, जैसा आपने कहा कि आपके पास जो फिनिश प्रोडक्ट का स्टॉक होगा वो पेंडिंग एसओ के अगेंस्ट होगा। अगर मान लो मुझे किसी बंदे ने बोला कि फलाने मेरे को 5,000 मशीन चाहिए XYZ मॉडल, ठीक है, अब वो मैं अगर बीएसआर में यानी फिनिश प्रोडक्ट गोडाउन में जो पड़े हैं वो अगर समझ के बनाऊं तो फिर वो मेरे जो प्रीवियस पीपीसी के हिसाब से बनाए होंगे तो मुझे प्रॉब्लम आ सकती है। तो ऐसे टाइम पे मैं क्या करूंगा कि 5,000 मशीन्स लगाऊंगा और ये सेल ट्रेंड एनालिसिस पे नहीं जाऊंगा, मैं डायरेक्टली वही मॉडल लगा दूंगा। वो कैसे लगाते मैं बताता हूँ आपको। और मैं क्या करूंगा कि मेरा जो फिनिश प्रोडक्ट का गोडाउन है उसका स्टॉक नहीं पकड़ूंगा, यानी ये जो बीएसआर में जो टिक लगे हुए वो हटा दूंगा और पीपीसी रन करूंगा। तो मेरा बाकी जो रॉ मटेरियल का स्टॉक है वो कंसिडर करेगा। अगर मैं समझता हूं कि मुझे खाली बीओएम के हिसाब से ही शॉर्टेज निकालना है तो मैं कोई भी डिपार्टमेंट को टिक नहीं करूंगा, फिर उसका जो बीओएम है उसका डायरेक्ट शॉर्टेज में आ जाएगा। सो ऑल दिस पॉसिबिलिटीज आर ओपन फॉर मी व्हाइल रनिंग द पीपीसी। ओके। और ये सब जरा 2 स्टेप में होता है, थोड़ा Hello. Hello, not able to hear you. Hello. Are you there? या एक्चुअली मेरा लैन का केबल कुछ गलती से खींच गया था, मुझे पता ही नहीं चला। That's okay. Oh, I was saying, but there was no response. It's okay, no problem. Yeah. So PPC input, I don't want to repeat now. You understood what PPC inputs I'm going to give. Yes. Correct? So this goes in 2 states. I mean 2 stages that you try and understand. First, I give all these inputs, and then I click here. Okay. Oh, sorry. HO factory spare is already put in it. HO factory spare is okay. Okay. So, Okay. Okay. Generate. Now I just I click this generate PPC One button question. over here. One question. Yeah. So Yeah, when we have these SO types over here and we see all of these, okay, these are SO types. So based on this is how we are going to generate the demand, right? Okay, and we've already given the date range. ठीक है, Correct. already. Yeah, so there are only 2 types of SO type I have clicked. One is the dealer SO and one is the end user SO. Yes, And that's I have given the period common for both of them. That is 1st July to 27 July. okay. तो ये पीरियड में ये 2 ही टाइप के एसओ वो लेगा और उसमें जो कॉमन मॉडल होंगे या कॉमन कॉम्बिनेशन होंगे उनको ऐड कर लेगा।
जो Okay. अनकॉमन होंगे उसको अनकॉमन रखेगा. ओके. अच्छा, अब एक क्वेश्चन ये है कि you've just basically given SO types. At that time, it does not see whether the SO is fulfilled or unfulfilled or whatever. The SO नहीं, should नहीं, just हाँ कोई संबंध नहीं है. हाँ खाली एसओ वो पीरियड का लेगा. दैट्स इट. ओके ठीक है. उसका इनवॉइस हुआ है नहीं हुआ है क्या हुआ उसको कोई खाली एसओ लेगा वो बस. So बहुत सिंपल है. again, I'm a little confused here. See, Yeah. you are already giving the total number of machines that are to be manufactured, right? So Correct. then why even specify the SO? Like, I mean, अगर आप ऑलरेडी बता रहे हो कि टोटल, अच्छा वो परसेंटेज के लिए कि ABC कितना बनना है. एसओ देने से मेरे को सेल ट्रेंड मालूम पड़ जाता है. Okay. So if you are giving a total number of machines as 1000, so you know which model and combination to make what percentage of. That is the Exactly. only benefit of actually implementing the SO thing over there. एग्जैक्टली. एसओ इज ओनली बिकॉज इनवॉइस किसी का हुआ रहेगा किसी का नहीं हुआ रहेगा. हाँ. Okay. एसओ मैंने दे दिया 1 जुलाई से 27 जुलाई. मुझे एंड यूजर का और डीलर का जितना एसओ आया तो मुझे सेल ट्रेंड एनालिसिस मालूम हो गया कि मेरा ये मॉडल ये रिसेंट पीरियड में ज्यादा बिक रहा है ये कम बिक रहा है. Okay. ठीक है ना, समझ गया. Alright. So here now I click the button as generate PPC down here. Okay. अभी ये करंट आइटरेशन में चल रहा है. आइटरेशन नंबर 4, 5. What is the meaning of these iterations? वही जो मैंने आपको बोला सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड वो कैलकुलेशन में आपको डिटेल में बताऊंगा. Okay. वो वाला आइटरेशन. So is that basically levels? Okay, no, not levels, but yes, you told me about the successful iteration where it sees that, and then you said there is another formula which you would like to use instead of the successful iteration. I will give you all those. Okay. Today you understand what the PPC means क्योंकि PPC के ऊपर आपने जब से ERP का बात शुरू किया बहुत बार मेरे मुंह से PPC सुना है तो मैंने कहा चलो आपको थोड़ा डिटेल में आइडिया तो बता. Right, and I have done some reports as well for the PPC. Okay, yeah, you have done, yes, correct. Right, so now here ये PPC रन हो गया. अभी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालना है. See what happens is if suppose we have multiple manufacturing units, but सेल ट्रेंड जो हमने देखा वो ऑल ओवर इंडिया का मतलब सब यूनिट्स का मिला के था. ठीक है ना. अभी मान लीजिए कि मेरे पास में 100 मॉडल्स में बनाता हूँ जिसमें परवाणु फैक्ट्री में 10 मॉडल बनाता हूँ, 20 मॉडल सिलवासा फैक्ट्री में बनाता हूँ और 70 मॉडल्स में धुलिया फैक्ट्री में बनाता हूँ. तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का नाम अगर मैंने परवाणु डाल दिया तो ये पीपीसी में खाली वही मॉडल आएंगे जो परवाणु फैक्ट्री में बनते हैं. भले ही आ गए कि आपको फलाने मॉडल इतने वो उतने बनाने हैं, वो सेल ट्रेंड एनालिसिस के हिसाब से आ जाएगा. ठीक है ना. लेकिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वाइज मैंने मॉडल डिवाइड कर रखे हैं तो फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वाइज वो पीपीसी लगाएगा. बराबर है. तो यहाँ पर मैं फिलहाल तो एक ही फैक्ट्री होने की वजह से यहाँ पे मैं MIDC डाल देता हूँ. MIDC फैक्ट्री टू सिलेक्टेड कंट्रोल क्लिक करूंगा एकदा पुढे कंट्रोल आणि अप्लाइज टू सिलेक्ट. ओके. अभी ऐसा है शांतनु की इसमें देखिए जो हमें रिपोर्ट यहाँ मिला है ये जैसा 500817 NPW 820Q1 बराबर. ये इसका आ गया कॉम्बिनेशन का नाम, कॉम्बिनेशन का कोड नहीं. हाँ ओके. कॉम्बिनेशन कोड इधर आ गया IC 011697 बराबर है. इसके 29 मशीन्स बनाने हैं, इसके 311 बनाने हैं. कॉम्बिनेशन के यहाँ आ गए क्वांटिटी. और एज यू गो डाउन और परसेंटेज किधर है मैडम? ओके. और यहाँ पे परसेंटेज आ रहा है इथे. ओके. Now the highest percentage is particular this model PHS 52BL. इसका 7.62% है, इसका 7.46% है. तो ये जो है ना ये आपका सेल ट्रेंड से लेके और जो हमारे पास स्टॉक था वो करके फिर आगे जाके जो फाइनली गणित आया उसमें इस तरीके का परसेंटेज आया. देखिए इसमें इतने सारे कॉम्बिनेशन है और लास्ट में 0.02% जिसके 2 ही मशीन बनाने हैं. 10,000 में खाली 2 ही मशीन बनाने तो ये 0.02% आ गया इसका. ठीक है ना. तो ये सारे कॉम्बिनेशंस मैन्युफैक्चर होने वाले हैं.
बराबर है। और इनको सबको मैंने सिलेक्ट कर लिया यहाँ पर कंट्रोल ए करके, और फिर ये अप्लाई टू सिलेक्टेड। मान लीजिए कि इसमें मुझे कोई मॉडल नहीं बनाना है बाय एनी चांस, यहाँ पर भी ये सब देखने के बाद भी मुझे लगता है नहीं यार ये फलाना मॉडल मुझे नहीं बनाना है, या उसका क्वांटिटी भी चेंज करना है, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये जो पहला मॉडल है PHS 52BL, अगर इसको मैंने अनसिलेक्ट किया, अनसिलेक्ट कैसे करें, यहाँ पे अगर मैंने इसे डिलीट किया इसको, तो ये मॉडल इसमें से गायब हो जाएगा पीपीसी में से, यानी 10,000 में 762 पीस ऐसे ही कम हो जाएंगे। या मुझे मान लीजिए कि इसको ऐड करना है, तो यहाँ पर मैं इसको करके कोई भी नया ये फिर आइटम मास्टर में चला जाएगा। अभी ये थोड़ा टाइम लेगा ऐसा मैडम का कहना है, लेकिन ये प्लस में गया, ये आइटम मास्टर में आया। अभी यहाँ पर मैं कोई भी असेंबली या कोई भी मॉडल या कोई भी कंपोनेंट, एनीथिंग इज अवेलेबल ऑन माय आइटम मास्टर, उसको लेके क्वांटिटी डाल के ये पीपीसी में ऐड कर सकता हूँ। क्लियर? So after getting the PPC as per sale trend analysis and considering the stock of my finished product go downs by using the successive approximation method and considering the total 10,000 machines to be manufactured, ये 9,999 पे सेटल हो गया। और ये करके मुझे यहाँ पर मिल गया कि कौन सा कॉम्बिनेशन कितना बनाना है। अभी मैं इन कॉम्बिनेशन को कम ज्यादा भी कर सकता हूँ, डिलीट भी कर सकता हूँ, या नए कॉम्बिनेशन या नया स्पेयर या नया असेंबली या नया कंपोनेंट कुछ भी हाथ से ऐड भी कर सकता हूं। इज दैट क्लियर टिल हियर? शुड आई मूव फर्दर? यस। तो यहाँ पर अगर मुझे कुछ ऐड वगैरह करना है तो मैं कर लूंगा, नहीं तो मैं इसको कंट्रोल ए किया, मतलब सारा सिलेक्ट हो गया, और अप्लाई टू सिलेक्टेड को मैंने टिक कर दिया। ये अब ये मेरा okay, and I apply over here also, and now I am going down for save, and I save it over here, Shantanu. This is your PPC report. No, so now this is the PPC 010826 ये वाला PPC. Now that PPC is already selected. इसके बाद में मुझे क्या करना है? I have to go on this run PPC. ये जो PPC आया ना, 2 स्टेज में होता है इसका पूरा गणित। पहले स्टेज में मैंने ये डिसाइड कर लिया सेल ट्रेंड एनालिसिस देख के कि इतने इतने कॉम्बिनेशन इतने पीस बनाने हैं, मुझे कुछ कम ज्यादा करना है, कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, मैंने कर दिया और मैंने उसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद में अब मैं PPC को रन कर रहा हूँ। So whatever these PPCs you can see here, I can run any of them. So I am running this latest one and I am ticking to this green one, run PPC नाम का उधर एक ये आया है icon. I am running this PPC. It will take a few minutes. Yeah. I think one of the biggest wins that you're looking for is the speed and the performance of all the reports, which have become kind of bloated now. Yeah, because you know it is when it populates the grid, it starts from 1st April 2017 because year ending is kind of thing is not been put up. That's why it's overloaded, overburdened. Okay. आता काय करायचं मॅडम? आता manufacturing MIDC परत टाकायचं. हो. कारण आता इथे आपल्याला 2 असतील Okay. Okay. Now I am running a PPC here, so I am, because then you know now what PPC is getting run कि उसको क्या क्या बनाना है ये पक्का हो गया है। ठीक है, अब ये मुझे MIDC फैक्ट्री में रन करना है तो मैंने MIDC फैक्ट्री डाला। करतोय हाँ मग कुठं आता कुठं चाललंय? थोडं 1 सेकंड थांब, स्लो होऊन कुठं सिलेक्ट नाही झालं? ओके. नाउ कन्सिडर स्टॉक ऑफ कॉम्बिनेशन बिफोर शॉर्टेज कॅल्क्युलेशन. हे नाही करायचं, क्लस्टिक नाही करायचं, हे आपण डेली PPC करता करतो.
Okay, now what is happening, Shantanu? This particular tick consider stock of combination before shortage calculation. इसका मतलब ऐसा है कि जितने आपके फिनिश प्रोडक्ट रेडी है उसका स्टॉक कंसिडर करना है क्या? तो यहाँ मैं वो टिक नहीं करूंगा क्योंकि जो मेरा फिनिश प्रोडक्ट में स्टॉक था वो कंसिडर होके सक्सेसफुल अप्रोक्सीमेशन मेथड वगैरह सब होके आ चुका है. हाँ. इसको अगर मैंने टिक किया तो ये क्या करेगा, ये पीपीसी में से जितना मेरे पास फिनिश प्रोडक्ट स्टॉक है वो वापस माइनस कर देगा. हाँ, वो उसी की बात कर रहे थे अपन, बट यू सेड कि भी वो यू डोंट यूज दैट मेथड राइट नाउ, यू डोंट यूज दैट ऑपरेशन. What we do, we run the daily PPC based on our pending sales orders, correct? हम लोग रोज सवेरे ऑफिस खुलने के बाद में हमारा पेंडिंग एसओ को, जितने भी पेंडिंग एसओ अलग अलग टाइप के, उनको सबको कंसिडर करके क्या शॉर्टेज आने वाला है वो पीपीसी डेली रन करते हैं. वो टाइम पे हम इसको यहाँ टिक कर लेते हैं, कंसिडर स्टॉक ऑफ कॉम्बिनेशन बिफोर शॉर्टेज कैलकुलेशन, क्योंकि उसमें जो हमारे पास फिनिश प्रोडक्ट पड़ा हुआ है वो हमको माइनस करना होता है. लेकिन ये जो हमारा प्लानिंग वाला पीपीसी है उसके अंदर हमारे पास जो फिनिश प्रोडक्ट का स्टॉक है वो हमने इसके पहले वाले स्क्रीन पे लगा लिया था, और जिसकी वजह से हमारा सक्सेसफुल अप्रोक्सीमेशन होके वो स्टॉक कंसिडर करने के बाद कौन कौन से कॉम्बिनेशन बनाने वो यहाँ आ चुका है. तो इसके लिए यहाँ पर हम इसको टिक नहीं करेंगे वापस. समझ रहे सर? यस. ओके, तो यहाँ जाके मैं इसको रन पीपीसी कर रहा हूँ. तुमचं 1 महिन्याचं गोंधळ तर नाही होणार ना? काहीच नाही, नंतर म्हणून टाकेल. हा. आणि असं पण मी नाव वेगवेगळं देत असते. आता हे काय भानगड? आता हे सगळे डिपार्टमेंट आले जिथे रॉ मटेरियल असतं आपलं. तेच तर आपण मागे लावलं होतं. नाही, ते वेगळं, ते फिनिशचं होतं. अच्छा, ओके 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 ओके. वो जो पहले टाइम हमने जो डिपार्टमेंट को टिक किया था शांतनु, फर्स्ट स्क्रीन में, those were the departments of only finished products. Okay, वो फिनिश प्रोडक्ट के डिपार्टमेंट की वजह से हमें ये पता चला कि कितना स्टॉक हमारे पास में फिनिश प्रोडक्ट का ऑलरेडी रेडी है, और वो हिसाब से जो पहला स्क्रीन सेव हुआ उसमें खाली फिनिश प्रोडक्ट का हुआ कि ये फिनिश प्रोडक्ट इतना बनाना है, ये इतना बनाना है, ये इतना बनाना है. अब ये जो सेकेंड स्क्रीन में उसको हम रन कर रहे हैं फर्दर, उसके अंदर हम क्या करेंगे कि इसके अंदर हम जो मटेरियल का डिपार्टमेंट है उसको हम यहाँ टिक करेंगे कि इसमें का वो स्टॉक कंसिडर करेगा फॉर फाइंडिंग आउट द रॉ मटेरियल शॉर्टेज, रॉ मटेरियल एंड असेंबलिंग शॉर्टेज. यानी पहला जो स्क्रीन है वो खाली हमें ये कंफर्म कर देता है कि 1 महीने का उसने सेल ट्रेंड एनालिसिस देखा और हमने फिनिश प्रोडक्ट का भी उसके अंदर टिक किया था, तो वो माइनस करके वापस वो बढ़ा के कितने उसको बनाने वो कंफर्म हो गया. अब जब मैं इसको फर्दर रन कर रहा हूँ तो यहाँ पर वो ब्रेकअप करते जाएगा एक एक लेवल नीचे, और फिर रॉ मटेरियल क्या शॉर्टेज है वो देने वाला है. कॉल में 550. ओके, येस. याला टिक परत करावं लागणार का? आता आधी चेक ऑल करून घ्या खाली. इसको मैं पहले चेक ऑल कर देता हूँ. रिमूव्ह करून टाकायचे आपल्याला अनवॉन्टेड आहे. मटेरियल सेल रिमूव्ह, ऍडजस्टमेंट रिमूव्ह, एडमेंट रिमूव्ह. बाकी करून घ्या तुम्ही एनसी वगैरे असं. एनीवे, सो पण हे पण सेव व्हायला पाहिजे ना, हे नहीं होते से. अच्छा, ये जो है ना, ये भी लास्ट टाइम जो टिक किया होगा वो सेव रहना चाहिए, लेकिन ये सेव नहीं होता है, तो इसमें कई डिपार्टमेंट है वो हाथ से अनटिक करना पड़ता है. तो ये भी सेव हो जाना चाहिए एक बार पीपीसी सेव होने के बाद. ये स्क्रीन जब नेक्स्ट टाइम खुलेगी, जैसे पहले वाले स्क्रीन में जो हमने टिक किए सेव हो जाता है, वैसा ये भी सेव होना, ऐसा हमारा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये वापस हमको हाथ से लगाना पड़ता है पूरा. मतलब कौन से डिपार्टमेंट चाहिए नहीं चाहिए वो सब. बीएसआर क्या करूं आणि रॉ मटेरियल बघते हैं. हाँ, अभी यहाँ पर बीएसआर जो है ना, ये फिनिश प्रोडक्ट का गोडाउन है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ठीक है तो भी टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि बीएसआर में वो फिनिश प्रोडक्ट देखेगा ही नहीं. वहां पर सिर्फ रॉ मटेरियल कुछ पड़ा होगा तो वही देखने वाला है, और कौन सा मटेरियल फिनिश प्रोडक्ट है और नहीं है वो हम जब आइटम क्रिएट करते हैं उसी टाइम उसको टिक लग जाती है. वो जो आइटम के टाइम पे जो राइट साइड में जो हम टिक्स पूछते हैं ना, उसका अलग अलग डिटेल्स, उसमें अगर फिनिश प्रोडक्ट को टिक किया तो इट विल बी कंसिडर्ड एज दैट फिनिश प्रोडक्ट. इफ नॉट, देन इट्स अ रॉ मटेरियल और असेंबली.
तो इसको मैं फिर करता हूँ रन पीपीसी यहाँ पर 2 मिनट के लिए। तो ये 2 स्टेज में होता है। पहले स्टेज में सिर्फ फिनिश प्रोडक्ट कौन सा कितना बनाना है और वो डेट का नाम लगा के उसको सेव कर देता है। फिर सेकेंड टाइम में जब इसको हम रन करते हैं तो जो भी डिपार्टमेंट हम देंगे उसके अंदर का वो मटेरियल कंसिडर करेगा। या ये सब कुछ अगर आपको चाहिए तो आप सिंगल स्क्रीन में भी कर सकते हैं, लेकिन दिस इज वेरी कन्वीनियंट फॉर अस कि पहले हम खाली फिनिश प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशंस फाइनल कर ले कि कौन से कितने बनने हैं और वो पीपीसी को नाम भी आ जाए एज पर द डेट, करेक्ट। फिर उसको हम कभी भी रन करेंगे तो वो डेट के हिसाब से रॉ मटेरियल के स्टॉक को लेके वो क्या क्या शॉर्टेज आने वाला है वो दिखाएगा। Okay, this may take about 3 to 4 minutes because this is where it is breaking all the BOMs, checking all the assemblies, stock in the various departments which are selected. First part was comparatively very easy. Second part is little clumsy because we have to do a lot of calculations. Yes. Figure 125 second. Okay. काम करूँ कमा और आइटम क्वांटिटी यहाँ आती गई है, ठीक है ना। ये मेरे ख्याल से सॉर्ट काय पे हुआ है, ये कोड नंबर पे सॉर्ट हुआ है, ऐसा कुछ तो लग रहा है मेरे को, आई एम नॉट श्योर। हाँ ये मॉडल नंबर पे ये हो गया है, क्या बोलते हैं, सॉर्ट हुआ है, ठीक है। देन वी हैव शॉर्ट कॉम्बिनेशन, यानी ये 10,000 पीस कितना है टोटल मैडम इसका? हाँ, शॉर्ट कॉम्बिनेशन काय बनलेलं? हा, पण ते वेगळे असतील का? पेंडिंग असतं आणि याचं असं वेगवेगळं असतं म्हणून ते तसं आलंय कधी-कधी. Then we have models. In the models, they show only 192 models. See the combinations were 257 combinations, whereas models were only 192. Because there are some models with different accessories create a new combination, different combination. Am I right? Right. So what's the So I difference? have to make. Sorry. Yeah. Go ahead. Ask me. I was saying, what's the difference between selected combination, short combination? Okay, short combination is something which you don't have, I guess. No, I think short combination, selected combination is one and the same. Which answer right now I don't have. I'll give you some time. Okay. Yeah. So now when the combination is broken into model and accessories, so these are the combinations to be made. These are the models to be made. These are the quantities. मतलब सपोज ऐसा कोई डिपार्टमेंट है जहां मैं सिर्फ मॉडल बना रहा हूँ, तो मैं ये वो बनाने दे सकता हूँ, बराबर है। फिर ये आगे शॉर्ट एक्सेसरीज, मुझे एक्सेसरीज जो बनानी है वो इतनी बनानी है, 89 टाइप की एक्सेसरीज टोटल, इतनी कुल मिला के 11,077 एक्सेसरीज बनानी है। फिर असेंबली कंपोनेंट, ये सारे असेंबलीज आ गए,
जो अलग अलग जैसे NEPL 696 जितने भी मेरे ये आ गए, और यहाँ पर इसके आगे वो असेंबली का क्या बोलते हैं डिपार्टमेंट आ गया जहाँ पर ये असेंबली बनने वाली है. सब ग्रुप म्हणजे काय? सब ग्रुप मध्येच आपण त्या डिपार्टमेंटचं नाव टाकून दिलं. हाँ, No, सब it's ग्रुप not. के अंदर हमने हाँ. डिपार्टमेंट का नाम डाल दिया है. अगर आप आइटम का मास्टर देखोगे तो असेंबली में जो आइटम सब ग्रुप नाम का एक एट्रीब्यूट है, तो उसके अंदर हमने वो डिपार्टमेंट के नाम डाल दिए जहां पर ये बनने वाली है ना. तो ये आ गया. पर तुम्हाला डिपार्टमेंट वाइज कुठे मिळतं मग ते? यालाच आम्ही एक्सेल मध्ये घेतो आणि याला आम्ही फिल्टर लावून वेगवेगळं करतो. अच्छा, ये लोग क्या करते हैं इस रिपोर्ट को, ये जो कुठल्या फॉर्मेट में, जनरेट एक्सेल इथे ये कुठल्या फॉर्मेट में, हे नोटपॅड मध्ये आहे. ये जो नोटपैड में अभी है इसको ये जनरेट एक्सेल कर लेते हैं, और उसके बाद में सारे डिपार्टमेंट को सॉर्ट कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल प्रिपरेशन असेंबली के जितने हैं वो सारे सॉर्ट हो जाते हैं, तो वो उसका फिल्टर हो जाता है. तो प्रिपरेशन असेंबली वालों को उनका शेड्यूल देते हैं. हालांकि अगर आप इसको बना रहे हैं तो आप हमें डिपार्टमेंट वाइज भी रिपोर्ट दे सकते हैं रेडीली. हाँ, I can actually, yes. ठीक है ना. तो हाँ. वही बताना चाह रहा था. हाँ. फिर इसके आगे ये देखिए, ये जो रिपोर्ट आता है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कंपोनेंट वाला रिपोर्ट. Okay. अभी ये जो एक्चुअली हमने रन किया ना शांतनु, ये एक्चुअल रिपोर्ट रन किया है. हाँ. 10,000 मशीन बनाने के लिए हमें कंपोनेंट देखिए कितने शॉट आने वाले हैं. हाँ. बहुत कम कंपोनेंट शॉट आ रहे हैं. नाही करू शकते. ते त्यांनी डिवाइड तिथेच केलेलं आहे, त्याच्यामुळे तसं वाटतंय. डिवाइड कुठे केलं? आता थोडं खाली जायचं तर तो थोडं खाली आहे. हा, तर इथे पण 1 2 3 4 चालू होऊन जातं. कॅटेगरी नेम चेंज झाला की परत 1 2 3 4 जातो. हो ना, पण एवढंच आहे ना शेवटी. हे बघा, एक मिनिट. चालेल. हाँ, असं म्हणतो. तो अभी इधर आया कैटेगरी नेम भट्टू. भट्टू इज वन ऑफ आवर सेल्स गाय, परचेस गाय. वो जो कंपोनेंट का उसके तरफ जिम्मेदारी है वो लेना है, उसका ये सब आ गया. उसके 8 कंपोनेंट है. अभी इसमें समझ लिए पहला कंपोनेंट है सेपरेट पोर्टेबल स्टैंड. ठीक है, ये जो भी उसका नाम डिस्क्रिप्शन ये आ गया. ये यूनिट आ गया, यूनिट ऑफ मेजरमेंट नंबर में होता है NO. शॉर्ट क्वांटिटी 70 है. इसमें पेंडिंग पीओ जो है वो देखिए 2 पेंडिंग पीओ है, एक 150 पीस का और एक 49 पीस का. इसका मतलब इसको हमें 70 पीस शॉर्ट पड़ने वाले एज ऑफ नाउ, लेकिन 199 पीस का ऑलरेडी पेंडिंग परचेस ऑर्डर है. ठीक है, तो ये 199 आने के बाद ये तो हमारे पास स्टॉक ज्यादा हो जाने वाला है, तो इसका हमें कोई ऑर्डर प्लेस नहीं करना है. सेम थिंग यहाँ पर 1 पीस का शॉर्टेज है, इसका हमें ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा क्योंकि इसका कोई पेंडिंग पीओ नहीं है. ये फोल्डेबल ग्रिल है, इसका 123 पेंडिंग 123 शॉर्ट गिरने वाला है और 509 का पेंडिंग पीओ है. मतलब इसमें हम एक आध कॉलम और बढ़ा सकते हैं कि एक्चुअल कितने पीस का ऑर्डर प्लेस करना है. Right. इफ वी वांट टू सी अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस है, भट्टू नाम का जो मेरा परचेस एग्जीक्यूटिव है, उसके उसके ज्यादा आइटम थे. ये 19 आइटम थे उसके. ठीक है, उसके बाद में कैटेगरी में आ गया भट्टू F नाम का एक बंदा है, और उसके जितने भी आइटम है वो एक के नीचे एक यहाँ आ गए. ठीक है, अभी इसमें और आगे इनपुट्स क्या रहते हैं वो थोड़ा दिखा देता हूँ. ये जिसको पेंडिंग ऑर्डर ऑलरेडी है हमारी, वो सप्लायर का नाम आ गया. फिर इसका ये आ गया कि लास्ट इनवॉइस नंबर ये था, और उसका लास्ट रेट पर यूनिट इतना था. मतलब लास्ट हमारा खरीदी का जो रेट था वो भी आ जाता है, और ये क्वांटिटी मिला के जितने का ऑर्डर देना है वो करके कैटेगरी वाइज टोटल जो है 11,13,262 11,13,000 का हमें इसका ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा भट्टू के लिए. ठीक है ना. उस तरीके से हर एक काम को नीचे एक टोटल मिल जाता है कि ये सारा पीपीसी का जब हम ऑर्डर प्लेस कर देंगे तो वो टाइम पे हमको 26 लाख का टोटल ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, जिसमें ग्रैंड टोटल फॉर पेंडिंग पीओ, जिसमें से 11,72,000 का ऑलरेडी पेंडिंग पीओ है. ठीक है ना. तो टोटल मिला के 38 लाख का ऑर्डर प्लेस, मतलब अगर हम 26 लाख का ऑर्डर प्लेस करेंगे